the pressure which is required to just to stop the flow of solvent molecule in case of osmosis. What we conclude here, हमने यहाँ देखा है कि पहले आर्म में सॉल्यूट के एडिशन से यहाँ का पोटेंशियल घट गया। जब पोटेंशियल घटा तो यहाँ पोटेंशियल अधिक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की तरफ मूव करने लगे और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा हमने क्या किया कि यहाँ पिस्टन लगा के यहाँ प्रेशर दिया हमने और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जस्ट स्टॉप कर दिया। इससे अधिक प्रेशर हमने नहीं दिया, केवल हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। तो हमने देखा ना कि इसका मतलब सॉल्यूट के एडिशन से इन दिस केस द पोटेंशियल डिक्रीज इन द पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट can be accomplished or replenished by increasing the pressure over the solution. इसमें सॉल्यूट के एडिशन से जो पोटेंशियल डिक्रीज किया, वो डिक्रीज इन पोटेंशियल को हम उतना ही प्रेशर बढ़ा के उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ सॉल्यूट के एडिशन से क्या हुआ, पोटेंशियल घटा और हमने प्रेशर लगा के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोक दिया। इसका मतलब इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो हमने पाया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूट के एडिशन के इक्विवेलेंट है। तो हमको मिला यहाँ क्या, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो हो रही थी उसको हम क्या करें, रोक दें, इतना ही प्रेशर अप्लाई करें, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट का एडिशन अगर अधिक करेंगे तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमको प्रेशर की अधिक रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब व्हाट वी हैव पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव CRT। पाई इक्वल्स टू CRT। वी विल डिस्कस इट। Pi means osmotic pressure. What we have, the osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solute in the solution. That means we have C together with R together with T. Here we have pi, which is known as osmotic pressure. C is known as concentration of the solution. R is gas constant and T is temperature. Pi, we can also write pi equals to, this C is also known as capital M, which is known as molarity, MRT. Or we can say pi is equals to molarity, it means number of moles of solute, volume of solution, R into T. Or we can say we have pi equals to, this N is N2, we can write N2, we know N2 equals to W2 by M2. What we have? W2 by M2 RT. To the next, we have this M2. M2 equals to W2 RT by pi. I left here V, and here we have V. That means M2 equals to W2 RT by pi into V. This is how we can get the molecular mass of the solute. This M2 is molar mass of solute. W2 is the mass of solute added. R is known as
gas constant, and T is known as temperature. This is all about the osmotic pressure. If you have a question in your mind that how you will determine the molecular mass, in order to determine the molecular mass, what we have, if we have such type of tube and having water into it, on addition of solute, there will be decrease in the potential, due to which we will determine what the osmotic pressure. If we have the osmotic pressure, this one pi, we have the W2, it means the amount of solute, how much solute we have added. We have the R gas constant, this is the temperature, this is the volume of the what? We have the volume of the solute, and M2 is known as molar mass of the solute, and hence by putting this value we will get the M2. To the next, we will discuss the application of osmotic pressure. That in the first case, in case of intravenous injections, we know the concentration of blood is salt concentration in the blood, or we can say the concentration of salt in blood is 0.9% mass by volume. It means if we have an intravenous injection, if its concentration is this much, then that will be good. But if the concentration of intravenous injection is lower than this or higher than this, if that concentration is lower than this, then that will dilute our blood, that will be fatal to us. If the concentration is higher than this, then that will make our blood more concentrated, which is also fatal to us. It means the intravenous injection should have the concentration of blood that is 0.9% mass by volume. It means if two solution having same amount of solute, then it is termed as isotonic solution. Isotonic. Two solutions that have same amount of solute is known as isotonic solution. The next, if a solution A is there and if solution B is there, if this A has higher amount of solute in comparison to B, then it is termed as hypertonic. And if C has lower amount of solute, then it is termed as what? Hypotonic. A solution, what we are describing? Hypertonic. A solution which has lower amount of solute is known as hypertonic solution. The next one, hypotonic, a solution
has lower amount of solute is known as hypotonic solution. तो हमने देखा कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस के केस में क्या है। इंट्रावेनस इंजेक्शंस के केस में जो इंजेक्शन हमको दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के अगर बराबर हो, यूं कह सकते हो कि दोनों के सॉल्यूट के अमाउंट बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसीलिए इंट्रावेनस इंजेक्शंस क्या होने चाहिए, हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन, सॉल्ट के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होने चाहिए, और जो होने चाहिए 0.9 मास बाय वॉल्यूम। अगर इससे हाइयर कंसंट्रेशन हो जाएगा, मान लीजिए इफ वी आर गोइंग टू गिव a solution intravenous injection that had higher amount of solute, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है। अगर ऐसा इंजेक्शन हमें दिया जाएगा तो इन केस क्या हो जाएगा, वो हमारे ब्लड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो ब्लड सेल्स हैं, अगर आरबीसीज को हम सपोज करते हैं, तो आरबीसीज में देखेंगे कि आरबीसीज और ब्लड के प्लाज्मा में कंसंट्रेशन, तो इसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, इसका पोटेंशियल हाइयर है, वाटर क्या करेगा, सीप करके बाहर निकल जाएगा, और आरबीसीज क्रिनेटेड हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, पतली हो जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी, दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक। श्रिंक कर जाएंगी तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी और काफी फैटल हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने क्या किया, ऐसा सॉल्यूशन चढ़ाया जिसका इंट्रावेनस इंजेक्शन ऐसा दिया जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, जब वो दिया जाएगा तो हमारे वो प्लाज्मा का क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम कर देगा, तो प्लाज्मा का क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, यूं कह ले उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो वाटर प्लाज्मा से सेल्स के अंदर जाने लगेंगे, और सेल्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा वाटर इंटरिंग आने के कारण, और सेल्स फट जाएंगी, दैट विल आल्सो बी प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए इंट्रावेनस इंजेक्शंस के कंसंट्रेशन बिल्कुल और बिल्कुल हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होने चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ पिकल्स, इफ वी यूज सॉल्ट बाहर यूज करने से बाहर का पोटेंशियल कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू पिकल्स, तो क्या होगा, बाहर पोटेंशियल कम, वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम पिकल्स टू आउटसाइड, एंड हेंस इट विल इजिली ड्राई अप एंड विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिग्रेडेशन। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट्स में वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है। वाटर जब एक्युमुलेट हो जाएगा तो बॉडी स्वेल करने लगेगी, और उसको प्रेस करने पे पिट्स के फॉर्मेशन होते हैं, दबाने पे गड्ढे बनेंगे जो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। इन्फ्लेमेशन इज अनदर कंडीशन। इन्फ्लेमेशन के केस में क्या है, प्रेस किया तो स्पॉन्जी हो जाएगा, प्रेस करते ही दबेगा और हाथ हटाते ही हट जाएगा, स्वेल कर फिर से अपने पोजीशन को रिकवर करेगा। एडिमा में क्या है कि आप प्रेस करोगे तो कुछ देर के बाद धीरे धीरे वो अपने स्टेट में आएगा। तो एडिमा क्यों होता, अगर बॉडी के पार्ट्स में ड्यू टू सर्टेन माल फंक्शनिंग सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर स्पेसिस में बढ़ जाते हैं तो वहां वाटर का एक्युमुलेशन होने लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉल्ट जहां भी आएगा वहां पोटेंशियल कम करेगा, पोटेंशियल कम होगा तो वो वहां वाटर फ्लो करके जाना चाहेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहां फ्लो करके जाना चाहेगा, और सॉल्वेंट जब फ्लो करके वहां जाना चाहेगा तो वहां एक्युमुलेट होगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एडिमा। We will discuss reverse osmosis in the next class. Thank you. Discuss reverse osmosis. By the process of reverse osmosis, desalination of seawater occurs and made it fit for drinking purposes. Let us know how reverse osmosis of seawater takes place. Let us have a container like this.
in which this one is known as outlet. Here what we have? Here we have piston, and in between them we have what? This is known as semi-permeable membrane. This one is piston, this one is outlet. What happens? We fill this tank with salty water. This is salty water. This one is fresh water. Let us see. Here what we have? We have salty water which has greater amount of solute. Therefore, this one has section B, section A. This has lower potential. Because we have discussed, if a water kept at the same height and the water which has greater amount of solute, we have studied that the solute decreases the potential energy of the water. In this case, this one is known as salty water, therefore it has lower potential, and this one has higher potential. Then in this case, water will move from section A to section B, like this. But what we do? We apply a pressure here by the means of piston. By doing so, what we do? We increase the pressure. We have studied, due to presence of solute here, the potential decreases. But on application of pressure, we know that the pressure increases the potential. It means when we apply pressure, then the movement or the process of osmosis is stopped. But again, on increasing the pressure more and more, it means in this condition, this water has lower potential, this one has higher potential. Then water will move from its higher potential to lower potential, and the process is termed as osmosis. But what we do here? By the means of piston, we apply pressure. By doing so, what is happening here? The pressure of this compartment B increases because we are going to apply here pressure. As more and more pressure is applied, a condition will reach that the process of osmosis stops. Why it stops? Because by the application of pressure, the potential drop in this section due to addition of solute is replenished by the increase in the pressure. It means if the osmosis stops, it means the potential of this compartment is equals to this compartment, and osmosis does not take place, and the movement of solvent molecule does not take place. But on further increasing the pressure, it means here the P is greater than pi. If a positive hydrostatic pressure is there, then this pressure is greater than the osmotic pressure. What it means? The decrease in the potential due to addition of solute, that pressure is known as osmotic pressure. But what we are doing here? We are going to apply a more pressure than osmotic pressure. Then in this case, this compartment has higher potential, and the direction of osmosis is reversed. It will start flowing from this to this compartment. This process, this is known as osmosis is reversed, therefore it is termed as RO. It means reverse osmosis.
कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है इससे सी वाटर का हम डीसैलिनाइजेशन करते हैं। सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जब हम सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं तो दैट वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। कैसे करते हैं हम देखेंगे। हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वाटर के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या है, हाइट सेम है दोनों कंपार्टमेंट की, तो दोनों में जो वाटर होगा दे हैव सेम पोटेंशियल। बट वी नो दिस वाटर इज सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है, और हमने पढ़ा है कि जहां सॉल्यूट का अमाउंट अधिक होगा वहां पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अधिक। तो ऐसे केस में वाटर विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वाटर इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, हमने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट टू दैट, अब करेंगे कैसे, आरओ कैसे करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते कैसे हैं। तो इसमें जो सॉल्यूट के एडिशन से जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, यहां हमने पिस्टन लगा के और यहां प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर जब हम लगाएंगे तो कंडीशन विल रीच दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल सीज। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो ऑस्मोसिस हो रही थी वो रुक जाएगी। ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा, अब हम जो प्रेशर इस पे और बढ़ाएंगे, इसका मतलब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाया, तो जब अधिक प्रेशर लगाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा और इसका पोटेंशियल उतना ही रहेगा। तो यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट बी टू कंपार्टमेंट ए, एंड द सॉल्ट रिमेन्स हियर एंड द वाटर मूव्स इन द कंपार्टमेंट ए एंड कम्स फ्रॉम द outlet that is known as fresh water. तो what we have done here, यहाँ हम किए क्या है, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। किससे, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाने से, या एक ऐसे प्रेशर लगाने से जो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, अधिक हो। ऐसे में ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को हमने रिवर्स करके सी वाटर का डिसैलिनाइजेशन कर दिया है और हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है। यहाँ हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है कि इट विल ओनली एंड ओनली अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, नॉट द सॉल्यूट। व्हाट वी हैव in case of reverse osmosis, that is RO, a pressure greater than the osmotic pressure is applied over the compartment B, due to which the movement of solvent molecule is reverse, which is known as reverse osmosis, or you can say RO, which leads to desalination of sea water. Next, we have the semi-permeable membrane.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। It is made up of cellulose acetate, over a support, which allows the solvent, which allows only the solvent molecule to pass through them, not the solute. अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी देखेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलुलोज एसिटेट की बनी होती है। किसी सपोर्ट पे हम सेलुलोज एसिटेट को जब डेवलप करते हैं तो दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, नॉट द सॉल्यूट। ये केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है और सॉल्यूट नहीं पास हो सकता। इस तरीके से हम डीसैलिनाइजेशन कर सकते हैं या ऑस्मोसिस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज अबाउट दिस चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड।